Hi friends, greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। Indeed, it's my joy and privilege in this morning to glorify the name of the Lord. वास्तव में आज जो मुझे प्रभु ने सौभाग्य दिया है कि मैं उसकी महिमा करूं, उसके नाम को ऊंचा उठाऊं। We welcome you in the City Life Fellowship, now Church Beyond the Boundary or Walls. मैं सिटी लाइफ फेलोशिप में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आज कलीसियां एक दीवारों से बाहर हो गई हैं। There is no boundaries. The church is everywhere, reaching the people with the gospel or good news of Jesus. आज कोई भी बंधन नहीं है और हर जगह परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच रहा है। Nobody can shut the proclamation or good news of Jesus to proclaim. कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको रोक सके परमेश्वर के सुसमाचार को बताने के लिए और बोलने के लिए। Throughout the centuries, many came and proclaimed, declared to be stopped the gospel, but they have been wiped out from the world. But the preaching of God's word still remain, and it will be continued till Jesus comes. बहुत से लोग, बहुत से राजा लोग इस सुसमाचार को खत्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए खड़े हुए, लेकिन वो इस संसार से चले गए। लेकिन ये परमेश्वर का जीवित वचन आज भी हमारे साथ, हमारा जिंदा परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। And I believe this morning the word of God has much power to speak to us. There is much power to reveal ourselves through the word of God. आज मैं सुबह काल में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन है जो वो हमसे बहुत ही सामर्थ्य रूप से बात करने जा रहे हैं। It doesn't matter where you are, but when the word of God comes, let your heart be open and believe what God says to you. और ये मायना नहीं रखता कि आप कहाँ हैं, लेकिन जब प्रभु का वचन आपके सम्मुख आता है तो आप अपने हृदय को खोलें और उसको ग्रहण करें। God wants to speak to you. परमेश्वर अपने वचनों से आपसे बात करना चाहता है। God has different medias to speak to you. परमेश्वर के पास अलग अलग तरह की योजना है कि वो आपसे किस प्रकार से बात करे। God has different channels to speak to you. परमेश्वर के पास अलग अलग जरिए हैं कि आपसे बात करे। Sometimes He speaks to the prophets, sometimes He speaks through the dreams and visions, sometimes He speaks from the individual, and the most of the time God speaks to us through this living word of God. और कई बार वो हमसे प्रोफेट्स के द्वारा बात करता है, कई बार हमें दर्शनों से बात करता है, कई बार हमें स्वप्नों में बात करता है, लेकिन अधिकतर परमेश्वर हमें इस जीवित वचन से बात करता है। This word of God reveals to us the will of God to our life. और ये जो वचन है, ये परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति है, वो हमें प्रदर्शित करता है। And this word of God, it tells us the desires and the expectation of God from us, that it reveals to us. और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की इच्छा और जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसको प्रकट करता है। This morning I will be very simplified and very brief in speaking. I will speak from the Gospel according to Matthew chapter 9 verse 35 to 38. इस सुबह काल में मैं मत्ती रचित सुसमाचार की किताब से 9 अध्याय के 35 से लेकर के 38 तक मैं उसमें से बहुत ही आसान और बहुत ही साधारण तरीके से कुछ बातों को लेके आना चाहता हूँ। Matthew chapter 9 verse 35 to 38. मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 9 अध्याय 35 से 38 तक। And it speaks in this way. Then Jesus went to all the towns and villages, the teaching in their synagogues, the preaching the good news of the kingdom, and healing every disease, every sickness. When he saw the crowd, he felt compassion for them, because of they were weary and worn out, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest are abundant, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of harvest and send out the workers into his harvest. यीशु जब नगरों और गांवों में जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा और जन समूह को देख
वो जनसमूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। The purpose of the writing of this gospel is the bringing or presenting to Jew Jesus as the King of Jew. और इस जो मत्ती रचित सुसमाचार की जो ये किताब है, ये सुसमाचार है, ये लिखने का मकसद ये है कि ये यीशु मसीह को यहूदियों का राजा प्रस्तुत करना चाह रहा था। Or he wanted to present Jesus as long-awaited Messiah, and eternal King has come to the world. और जो यहूदी लोग जब बहुत लंबे समय से एक मसाया की उसमें इंतजार में बैठे थे, तो उनको बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह मसाया आ चुका है। The long time the Messiah, throughout the centuries, the Jewish people has been very badly affected and taken to the captive, and they will be in the slavery. So they were looking for Messiah who will come and rule over them, and he will be the king of their lives. He will rule over them, and they will be a total free country and total free persons. और वो बहुत यहूदी लोग बहुत लंबे समय से प्रभु यीशु मसाया का इंतजार कर रहे थे कि एक उद्धारकर्ता आएगा, छुड़ाने वाला आएगा। और वो बहुत ही, जब हम देखते हैं इतिहास को कि वो कैप्टिविटी मीन्स बंधुआई में गए और उनके ऊपर बहुत ताड़नाएं हुई, परेशानियां आई, लेकिन इस ऐसे समय में कौन आएगा, और वो चाहते थे कि उनका कोई एक राजा हो और वो उनके ऊपर अधिकार रखे और उन पर राज्य करे। And Matthew, the Levi, he understood that this is the Messiah of Jews, and he wanted to protect them whom they were waiting. He is in the midst of them. और जो मत्ती, जो कि जिसका नाम लेवी भी है, वो उसने अब यहाँ पर यीशु मसीह को किया है। Then throughout the centuries, the people were anticipating the Messiah to come, but Jesus came not according to what they were expecting, beyond what they were thought of. और वो जो बहुत लंबे समय से यीशु का बहुत ही सदियों से इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा, और वो जिस तरीके से वो लोग सोच रहे थे कि ऐसे आएगा एक राजा बन के, लेकिन परमेश्वर अपने अलग तरीके से वहाँ पे इस दुनिया में आया। This gospel is especially attraction or especially dedicated to Jew people. और ये जो सुसमाचार है, ये विशेषकर ये यहूदियों के लिए दिया गया है। And in this gospel you will see the many parables, where the Jesus illustrates to proclaim or the truth of word of God and truth of the kingdom of God. और इसमें से जो सुसमाचार है, बहुत सारे पैराबल्स मीन्स दृष्टांत हैं, और जो उनको परमेश्वर ने प्रस्तुत किया है कि अपने स्वर्गीय बातों को उसने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। And here you find this gospel is especially speaks about the people, those who Jesus tells that I did not come to vanish the law, but I came to fulfill the law. और ये बहुत जगह पर इस प्रकार से लिखा कि यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए, वो इसलिए आए हैं कि वो व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए हैं। Jesus came to fulfill the law. यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे। The key people of this gospel, you will find Mary, you will find Joseph, you will find John the Baptist, you will find Peter's and disciples and Mary Magdalene and Pilate and so on. और आप जो इनके जो मेन किरदार हैं, वो लोग मैरी, जोसेफ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और भी बहुत सारे लोग जो पास्टर जी ने बोले वो हैं। And the key places will be the Bethel and the Capernaum and the Jerusalem, and then it is the Galilee and Judea. और जो मेन वहाँ पे जहाँ परमेश्वर गए और जिस जगह उन्होंने सेवकाई किया, तो वहाँ पर बेथलेहम, कफरनहूम और जूदिया और सब अलग-अलग जगह पर शहरों में गए, वहाँ का। This overall it is more emphasize the beginning of the Jesus ministry. और ये सारी बातें जो है कि जो दिखा रही है, तो प्रदर्शित करती है कि ये परमेश्वर ने जहाँ उनके कार्य किए। Jesus most of the time
conveyed his message to the people through the illustrations or through the parables. और अधिकतर परमेश्वर ने अपने जो सुसमाचार को सुनाया वो दृष्टांतों के द्वारा और कहानियों के द्वारा सुनाया। The parables are the earthly stories which convey the heavenly meanings. और जो दृष्टांत जो थे कि वो जो कि पृथ्वी की बातों को लेकर के वो स्वर्गीय रहस्यों को खोलने वाली बात है। Because it's impossible to grasp the heavenly things until unless it be modified in the normal language to on the day-to-day language. और ये बहुत ही मुश्किल बात है कि अगर कोई हम स्वर्ग की बातें कुछ ऐसी बताएं, लेकिन अगर हम उसको पृथ्वी से ही रिलेशन से मतलब कि उससे संबंध करके बताएं तो उसको आसानी से समझा जा सकता है। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह प्रस्तुत करते थे। Therefore, the today's gospel is sufficient for everybody whoever want to. It is the sufficient. Gospel is for the common people. Gospel is for the illiterate people and educated people and the high professional people because it reveals its meaning in the. और आज परमेश्वर का यीशु समाचार जो है ये हम सब के लिए पर्याप्त है, चाहे वो एक अनपढ़ व्यक्ति पढ़े, चाहे थोड़ा सा पढ़ा लिखा पढ़े या बहुत ही हाई क्वालिफाइड व्यक्ति पढ़े, जो प्रशिक्षित अच्छा प्रशिक्षित तो वो पढ़े, वो सब के लिए परमेश्वर उसमें इस तरीके से बात किया है। Jesus reached with his message according to the community. और परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचन को लेकर के हर एक समुदाय के तरीके से हर एक समुदाय के लिए पहुंचा है। When Jesus met the fishermen, he took the illustration of fish and he spoke to them. और जब प्रभु यीशु मसीह मछुआरों के पास गए तो उन्होंने मछलियों का उदाहरण लेकर के पर उन लोगों को सिखाया। When he went to the educated person, he spoke in that way that they could understand the kingdom. और जब वो बहुत ही मतलब कि प्रशिक्षित लोगों के पास गए तब उन्होंने उनके तरीके से बातें की ताकि वो परमेश्वर के बातों को समझ सके। The mega themes of this gospel, जो उसका मेगा थीम है, जो मुख्य कथन है, that Jesus the King, कि यीशु मसीह राजा है, Jesus the Messiah, यीशु मसीह मसीहा है, and the kingdom of God, और स्वर्ग का राज्य, and teachings, और उसकी शिक्षाएं, and the resurrection of Jesus. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान। These are the mega themes of this gospel. और ये मेन पॉइंट है यहाँ इस गॉस्पेल के। Let's come to the back to Matthew chapter 9. आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में फिर से वापस आ जाएं। In the 9th chapter, Jesus dealing various topic. और जो 9वें अध्याय में है यीशु मसीह अलग अलग बातों से यहाँ पर होकर के गुजर रहे हैं। Jesus speaks, the Son of God came to forgive the sin and heal. कि यीशु परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वह सारे पापियों को क्षमा करे and उनको चंगा करे और उनको चंगा करे। And then in this chapter also you get the call to Matthew. और इस चैप्टर में हम लोग मत्ती की बुलाहट के बारे में भी देखते हैं। And then question about the fasting and the fasting and prayer. और वहाँ पर जो प्रश्न करते हैं उपवास के लिए। And in this same chapter also Jesus restored a woman who was bleeding. और इस अध्याय में हम एक स्त्री का जो कि जिसका लहू बहने की बीमारी थी उसको चंगाई देने का और दृष्टांत पढ़ते हैं। And then in this same chapter you also get that Jesus healed a blind man. और इस मतलब कि इसी अध्याय में हम लोग 2 अंधों और एक गूंगे की चंगाई को देखते हैं। And Jesus also healed the people, demon possessed people. और यीशु मसीह ने जो मतलब कि demon possessed people शैतानी को से जो बंधे हुए आयु में थे उनको चंगाई करने का। Dear friend, this chapter is the full of deliverance chapter. और ये जो अध्याय है ये पूर्ण तरीके से छुटकारे का अध्याय है। Therefore, when you come verse 35 to 38, और इसलिए जब हम 9 अध्याय के 35 से 38 तक आते हैं, then it says that then Jesus went to all the towns and villages, the teaching in their synagogues. कि ये जब यीशु मसीह वहाँ पर क्या नगरों में गांवों में जा करके और आराधनालयों में उपदेश दे रहा था। In this chapter you see the different healings happen different places, and this tells that Jesus went villages and towns to proclaim the good news of the kingdom. जब हम यहाँ देखते हैं इस अध्याय में कि यीशु मसीह गांवों में शहरों में अलग अलग जगहों में जा करके वो परमेश्वर के कार्यों को जो कर रहे थे चंगाई दे रहे थे कि वो और सुसमाचार सुना रहे थे।
the good news has been preached since the centuries. और जो परमेश्वर का सुसमाचार है ये सदियों से प्रचार किया जा रहा है। And it is only the impact the people when the good news come to someone's lives. In the world there is no good news. In the world there is always a painful news, a sad news, a depression, a pain, a sickness. और जब हम वैसे संसार की बातों को जब कोई न्यूज़ देखते हैं तो उसमें से सिर्फ हमें दुख, तकलीफ और परेशानियां और डिप्रेशन ही आता है। But in the kingdom, in the message of Jesus, there is a hope, there is a joy, there is a salvation that the Jesus proclaimed the good news of the kingdom. और जब हम परमेश्वर के सुसमाचार का जब वहाँ प्रचार देखते हैं, जब सुना है हमने, तो वहाँ पर उद्धार आया है, छुटकारा आया है और हमें शांति मिली है। What are the things involved in the kingdom? और क्या क्या चीजें हैं जो कि What are the things involved in the kingdom? अच्छा जो इस संसार की जो राज्य है इनमें क्या क्या बातें हैं? In this good news, what things are matters, Lord? और जो ऐसे गुड न्यूज़ है जो मतलब सुसमाचार है उसमें क्या लगता है? In this good news there is a healing. और इसमें है चंगाई। In the good news it comes a healing for you. परमेश्वर के सुसमाचार में चंगाई। In the package of good news. और जो एक मतलब कि सुसमाचार का जो समूह है। Bundle in this there is a healing. उसके अंदर चंगाई है। Dear friends, in this morning I do not know what kind of sickness you are facing or going through, but I have a good news for you. There is a deliverance and there is a healing in Jesus' name on all the sickness. मेरे प्रिय, मुझे नहीं मालूम है कि आप किस परेशानी से, किस तकलीफों से, बीमारी से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर का चंगाई का और वरदान जो परमेश्वर मतलब कि यहाँ पर बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का चंगाई मिलने वाली है। In this good news there is a deliverance of disease. और जो ये सुसमाचार है इसमें हमें एक बीमारियों से छुटकारा मिलने का। In this disease you may have give whatever name the disease have, but let me tell you, I have a good news to tell that Jesus is above every name. और मैं चाहे मैं कोई किसी प्रकार की या कोई भी नाम हो बीमारी का हमें नहीं पता, लेकिन उन सब के ऊपर यीशु मसीह है उसको छुटकारा देने के लिए। I do not know what name your sickness carry on. मुझे नहीं पता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी, उस बीमारी का क्या नाम है, वो शरीर में क्या चल रहा है। I do not know what disease you are having, what name you are carrying, but I have good news to proclaim this morning in the name of Jesus, the Jesus of Nazareth. The healing comes through His name. और मैं बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का जो यीशु समाचार है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओ, उनको छुटकारा मिल जाए आपको। In this good news, there is a healing, there is a deliverance from all diseases. और ये जो सुसमाचार है, ये परमेश्वर का सुसमाचार जिसमें हमें चंगाई मिलती है, जिसमें हमें छुटकारा मिलता है। Your sickness will be no more. That sickness will be healed in Jesus' name. और आपका आज समय से प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा देगा, और आप ये जीवन में आपके कभी नहीं रहेगी। God is not interested that you should be cautious, you should remain always sick and weak in your body, but God is interested because He is a compassionate God. He wants to heal you. मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे ही बने रहे, इसी तरीके से, इसी अवस्था में पड़े रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप छुटकारा पाए, चंगाई पाए, और वो आपको चंगाई देना चाहता है। Verse 36 says, वचन 36 इस प्रकार कहता है। verse 36 speaks in this way. 36 इस प्रकार बोलता है। When he saw the crowd, he felt with compassion. और जनसमूह को देखकर उससे लोगों पर तरस आया। My Jesus is the compassionate God. हमारा यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। Today He will not pass through you until He heals you. और आज वो आपके बिना छुए आपके आगे नहीं जा सकता। Today He will not bypass you. He has a compassion. He wants to have compassion upon your life, upon your family, upon your church, upon your personal life, upon your business. मेरे प्रियो, आपको वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। आपके चाहे कितनी भी समस्या हो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, और वो आपके ऊपर दया करेगा। He was moved with compassion. वो दया पूर्वक आगे बढ़ता है। He saw the crowd. उसने जनसमूह को देखा, भीड़ को देखा। Dear friend, let's take this crowd, today's language, the world which is having difficulties.
और ये जो क्राउड है, जो आज मैं इस संसार को उस क्राउड से तो बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार आज तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और फेस कर रहा है, But Jesus is compassionate. मेरे प्रियो यीशु मसीह बहुत ही तरस खाने वाला दयालु परमेश्वर है। He felt compassion for them because they were weak and worn out. और ये वो ऐसे समूह है जहाँ पर वो लोग बहुत ही कमजोर थे, असहाय थे, उनके ऊपर परमेश्वर यीशु ने तरस खाया। Nobody feeling to look upon you, nobody interested upon your life, but Jesus, here the scripture says, He felt compassion for them. और हमारे जीवन में जब हमारी समस्याएं आती हैं, हमें हम पर दया दिखाने वाला कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर जब यीशु मसीह को देखते हैं, उसको दया आई उनको देखकर। And you know, there was a man, 38 years, he was living near the pond, but there was nobody to help him or rescue him or get healing for him. मेरे प्रियो, इस वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जो 32 साल से 38 years. 38 साल से वो उसके तालाब के किनारे था, लेकिन उसको कोई भी उस तालाब में ले जाकर के उसको पानी छूने के लिए नहीं लेके जाने वाला था। But Jesus moved to that place and had compassion upon him. लेकिन यीशु मसीह उस जगह पर गया और उसके ऊपर दया दिखाई। That means Jesus is interested on you to have compassion. He will not pass by you. He wants to have a peace, a healing, a restoration, a newness upon your life. मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे होकर यूं ही नहीं गुजरेगा, लेकिन जब वो आएगा हमारे जीवन में, जब आता है हमारे पास आता है, तो उसकी दया हम पर आती है, हमें छुटकारा मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगी, हमें आज़ादी मिलेगी। Here says that people are like a sheep without shepherd. और यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा न था। Dear friends, मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, if you feel that nobody is there to take care, but Jesus is interested, and Bible tells that we are people like sheep, like without shepherd. मेरे प्रियो, शायद ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, और हम ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा एक परमेश्वर है जो वो हमें ऐसे संभालता है जैसे एक भेड़ अपनी भेड़ों को संभालता है। Without sheep, without shepherd. बिना भेड़े बिना चरवाहे के। And that type of people, that we are stray, we gone away, we are like nobody taking care of us, but He wants us to be. He wants that we should be His, and He wants to become a shepherd to us. मेरे प्रियो, हम उस तरीके के थे कि जैसे भटकी हुई भेड़ों के समान हम इधर उधर थे, और परमेश्वर चाहता है, वो हमें एक साथ रखना चाहता है, और हमारा वो परमेश्वर हमारी चरवाहा बनना चाहता है। That's why verse 37 and 38 becomes very, very important. इसीलिए ये 37 और 38 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। It becomes very important. ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। About part the Jesus, wherever He went, He was proclaiming the good news of the kingdom. और ऊपर वाला जो हमने वचनों को पढ़ा, वहाँ पर देखा कि जहाँ के भी यीशु मसीह गए, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। In this good news, in the kingdom, the good news of the kingdom, in there were healing, there was healing from the sickness, healing from the disease. जब हम सुसमाचार के जो सुसमाचार में हम देखते हैं कि वहाँ पर आज़ादी हुई, चंगाई हुई, छुटकारा हुआ। But when you come down, और जब हम इसमें इसी वचन में नीचे आते हैं, Jesus is asking disciples to pray for one important factor. और जब यीशु मसीह अपने चेलों से बोलता है और उनसे इच्छा रखता है कि तुम एक ऐसे महत्वपूर्ण बात के लिए प्रार्थना करो। Here Jesus tells them that harvest is plenty, but the laborers are few. तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। The harvest are plenty, but laborers are few. पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। Therefore, इसलिए pray to the Lord of harvest to send the workers into the harvest. फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। Now I would like to express you a two type of harvest. अभी मैं आपके सामने दो प्रकार की फसलों के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
the harvest, natural harvest and spiritual harvest. और एक तो नेचुरल है जो प्राकृतिक है जो हमारी फसलें हैं और दूसरी एकात्मिक फसल। When Jesus is speaking, he is speaking about the spiritual harvest. और जहाँ यीशु मसीह जब ये बोल रहा है तो वो एक आत्मिक फसल के बारे में बोल रहा है, The spiritual harvest. एक आत्मिक फसलों के बारे में बोल रहा है। The harvest is the result of a labor. और जो हार्वेस्ट मतलब कि फसल है वो हमारे जो कठिन परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल हो। Good harvest will be always dependent a good labor on it. और जो एक अच्छी फसल है तो वो एक हमारे जब हम अच्छी मेहनत करते हैं तब हमें वो प्राप्त होती है। 4 things are involved in the harvest. 4 बातें इस फसल में मतलब फसल हार्वेस्टिंग में फसल उगाने में चीजें रखती हैं, मायने रखती हैं। 4 things are involved in the natural field, natural harvest and spiritual harvest. 4 ऐसी बातें हैं जो कि एक जो फसल उगाने में वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। And with that I will conclude today's message. और इसके साथ ही आज मैं इस सुसमाचार को यहीं पर विराम दूंगा। The one, it is the preparing ground for the harvest. पहली बात कि एक अच्छी भूमि तैयार करना फसल के लिए, Preparing ground for the harvest. एक अच्छी जमीन को फसल के लिए तैयार करना। Second, दूसरी बात, the sowing seed in the ground. और उसमें बीज, अच्छे बीजों को बोने का, Sowing seed in the ground. उस जमीन पर अच्छे बीजों को बोना। And third, और तीसरी बात, protecting the cultivation. कि वो जो कटनी का जो उग रहा है और वो कटने के लिए उस समय तक उसकी सुरक्षा Or रखना, another word, protecting the harvest. और उस फसल की निगरानी रखना। And fourth, और चौथी बात, wait for the harvest or crop. और उसको पकने तक इंतजार करना। This process is not an easy process. और ये जो 4 क्रियाएं हैं ये बिल्कुल आसान क्रियाएं नहीं है। These are not an easy process. ये कोई आसान प्रतिक्रिया नहीं है। Turn with me what Bible speaks to us when we labor hard. आइए मेरे साथ पलट ले। कौन सा? Psalm 126 verse 5 and 6. Psalm 126 126 वजह से 126 And 5 and 6. 5 और 6। It says those who sow that in tears. 26 verse 5 and 6. 126 126, yeah. 5 6 नहीं। What is there? Okay. So here it says, those who sow in tears will reap with a sound of joy, and though one who go along weeping, then carrying the bags of seed, he will surely come back with a sound of joy, carrying the sheaves. भजन संहिता 126 का 5 और 6, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे, जो बीज लेकर बोने के लिए रोता हुआ चला जाता है वह निश्चय ही अपनी पुलियां लिए हुए जय जयकार के साथ लौट आएगा। This is the scripture which tells how much painful even having a harvest or going for a harvest is bringing a tears. और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में कि कितना मुश्किल है कि जब हम वो फसल के तैयारी करते हैं कि यहाँ पर आंसुओं के साथ वो तैयारी हो रही है। Even the scripture also tells if somebody sees the sun or weather and wait for the harvest, it will be very late. और वचन कहता है कि यदि कोई मतलब कि मौसम को देखे और उसके लिए इंतजार करे तो वो जो फसल है वो लेट हो जाएगी। In the due time, a farmer doesn't see what will happen after 3 months, what will happen after 2 months, but what he has to do today, that becomes very important for him today.
और जो किसान होता है वो ये नहीं सोचता है कि अभी 2-3 महीने में क्या होने जा रहा है और क्या होगा, लेकिन जो एक समय आता है फसल बोने का वो उसी समय जाकर के बीजों को बोता है। But when he tilled the ground, when he saw the seed, he is already in his mind, he sees the big crop or big harvest. और जब वो उस बीज को बोता है तो उसके दिमाग में ये पहले से तैयारी रहती है कि मेरी फसल बहुत अच्छी होने वाली है और वो अच्छा उगने वाली है। But here the scripture, Psalm 126:5 says, one who sow in tears will reap with a shout of joy, and though one who goes along the weeping carrying the bags of seed, but he will surely come back with a shout of joy. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे, जो बीज लेकर बोने के लिए रोता हुआ चला जाता है वह निश्चय ही अपनी पुलियां लिए हुए जय जयकार के साथ लौट आएगा। And if you read Matthew 9 verse 12 and 13, same chapter, 9 का 12 और 13, मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 12 और 13, what it says? Yeah, read please. परंतु जब उसने यह सुना तो कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है, परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो, वे बलिदान नहीं पर दया चाहता है, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। This is the cause of Jesus coming to the world. He came to not to the healed one, but the sick to receive and they may healed. और जो यीशु मसीह पृथ्वी पर आया वो इसलिए उनके लिए नहीं आया कि जो भले चंगे हैं, लेकिन उनके लिए आया जो बीमार हैं, मतलब धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया। The word preparing for the ground is very important. और जो ये सब परमेश्वर के वचन के लिए जो भूमि को तैयार करना ये बहुत ही आवश्यक है। Dear friends, मेरे प्रियो, the preparation of this good news, what Jesus preaching or Jesus sharing for the kingdom, has been preached or prepared through the centuries past. मेरे प्रियो, ये जो वचन है जो यीशु मसीह बता रहा है और आज भी प्रीच किया जा रहा है, ये सदियों से तैयार किया हुआ वचन और प्रचार किया जा रहा है। Throughout the prophets of the Old Testament, they were preparing for the coming of Messiah. They were proclaiming even the 700 years, even the 4,000 years before they proclaimed that Jesus, the Messiah, will come. They were preparing all the grounds. जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो जो भविष्य वक्ता लोग हैं वो 4,000 साल मतलब हजारों साल से ये बात को बताते आ रहे हैं और लिखा भी है कि यीशु मसीह आएगा, वो हमारे मसीहा आएगा, और वो लिखा है, फिर उसको आगे हम और भी देखते जाते हैं। Even the Roman emperor was a part of preparation of God's kingdom. और यहाँ तक कि जो रोमियो का सम्राट था वो भी उसको तैयारी करने में उसका एक भाग बना। 3 things Roman gave. और 3 चीजें जो रोमियो ने दिए हैं। One, they gave one language. उन्होंने एक भाषा दी। They set a common language. उन्होंने एक साधारण भाषा रख ली। They gave a transportation. और उन्होंने यातायात दिया। They built a transportation for everywhere. और उन्होंने यातायात के साधन के लिए सड़कें और उनके ट्रांसपोर्ट का तैयारी किया। And they established a common culture. और उन्होंने एक सबके लिए एक सामुदायिक कल्चर बनाया। That means this was it become very easy in the time of Jesus to proclaim, because everywhere there was one language and a similar culture, and it was transportation. There's a way for everywhere to go. और जब उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई तो इसलिए बनाई क्योंकि यीशु मसीह को सारे लोग एक ही भाषा में समझ सकें, एक ही भाषा में जान सकें, और एक ही समुदाय में जब अगर वो हैं एक ही चीज़ को मानते हैं तो वैसी समुदाय में परमेश्वर का वचन को आसानी से पहुंचाया जा सके, और वो वचन अलग अलग जगहों पर जाने के लिए आसानी से वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकें। So they were prepared all preparing the ground for the kingdom of God to establish. उन्होंने परमेश्वर के लिए परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की भूमि बनाई। And then comes the John the Baptist. और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देखते हैं, When you study about him, he is the voice in the wilderness proclaiming preparing the path of Messiah.
और जब वो जंगल में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था और परमेश्वर के लिए एक मार्ग बना रहा था, he came to prepare the way to Jesus to minister. और उसने वो रास्ता बनाया कि वो परमेश्वर जब यीशु आए और वो अपने सुसमाचार को सुनाए। Having good harvest, it need a prepared good ground. और अच्छी भूमि, अच्छी फसल के लिए हमें चाहिए कि हम एक अच्छी जमीन को अच्छे उसको उपजाऊ बनाएं। That God was preparing throughout the centuries to a good ground to bring His Son. That's what the Ephesians chapter 1 verse 4 says. In the fullness of time, God sent His Son to the और earth. इफिसियों 1:4. एक 5 में 4 में इस प्रकार कहता है कि ये परमेश्वर के समय पर सारी बातें हो। We can read the scripture. Ephesians chapter 1:4. इफिसियों 1:4। Yeah. उचित समय पे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। In the fullness of time, God sent His Son. होने पर वह सब कुछ Which one? जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करो। Yeah. Which one? Read. 10। Yeah. Read. ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि समयों के पूरे होने पर वो सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करें। 4 verse 4. Galatians 4 verse 4 पढ़े. Yeah. Galatians 4. When the completion of time. Yes. 4 verse. In Galatians chapter 4 verse 4. Galatians 4 verse 4. It's in the fullness of time. Yeah. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Here, Galatians 4:4 says, when the completion of time came, God sent His Son, born of a woman under the law, to redeem those who are under the law, so that we might receive the adoption of sons. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। God was preparing throughout the history, the coming of His Son. He was preparing a good ground for having great harvest. और जब परमेश्वर सदियों से वो रास्ता वो तैयार कर रहा था, वो जमीन वो चीजें तैयार कर रहा था कि जब यीशु मसीह आए तो वो अपने सुसमाचार को और अपने कार्यों को दिखाए। Second, the seed, sowing seed for the harvest. The Jesus and His apostles, they sow the seed for the kingdom. और दूसरी बात है कि उन्होंने जो वचन को एक मतलब कि एक बीज को जो बीज वो वचन है उसको और उसके लोगों ने सुसमाचार सुनाया। In India, Saint Thomas came to India and he proclaimed the good news. And because of his seed, today we Indian Christians, we Indian believers are having a good harvest because the seed of the kingdom was sown in this land. प्रभु यीशु मसीह का चेला जो थोमा कहलाता है वो इस पृथ्वी पर आया, इस भारत देश की जमीन पर आया और उसने सुसमाचार सुनाया जिसके कारण आज हम सब मसीह हैं और उसने जो बीज बोया उसके कारण आज हम परमेश्वर के कार्यों में हैं। So seed was sown for the good harvest. वो जो बीज बोया गया वो एक अच्छी भूमि में वो जब बोया गया ताकि वो एक अच्छी फसल लेके आए। One place the scripture tells, if the seed of wheat does not go to the ground and die, he does not produce the fruit. और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो गेहूं का एक दाना है जब तक वो भूमि में न जाए, वो न सड़े न मरे, तब तक वो फलेगा नहीं। And the same way, it is the statement of the church history. The blood of the martyrs is the seed of the church. और जो इतिहास जब हम मसीह इतिहास को देखते हैं कि जो बलिदान जो क्या बोलते मार्टियर शहीदों का जो लहू जो बहाया गया है उसके कारण आज कलीसिया का नींव है या बीज है। वो कलीसिया का नींव है।
And the bread of the maturity is the seed of the church, that wherever the seed has been sown, the kingdom and the harvest is prepared well. और जहाँ कहीं भी मसीहियों का वो लहू बहाया गया है और वो सीड बोया गया है, वो बीज को बोया गया है, वहाँ पर बहुत ही परमेश्वर का कार्य हुए। That's why the Jesus said, the harvest is plenty, labors are few. इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, पकी फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। Last 2000 years, the proclamation of the gospel has been shown very powerful, and the harvest becomes so widespread, and the labors are few. That's what is requested to all of us. Let us pray for the Lord of the Master, Lord of the harvest, so He should send the labor for His harvest. और जब हम देखते हैं कि सदियों से जो वचन सुनाया जा रहा है, हर जगह जगह पर, हर एक संसार के एक कोने में जो वचन पहुंचा है, लेकिन फिर भी आज भी हम उस कमी को पाते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं कि वो और भी उसमें जुड़ें और परमेश्वर की सेवा करें। Third, the protection for the harvest. और तीसरी बात है जो कि उस फसल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा करना। Matthew chapter 16 verse 18 says, मत्ती 16 का 18 बोलता है, Jesus said, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. कि मैं अपने कलीसिया I will Matthew chapter 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. 16 verse 18. Read. मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। I will build my church upon this rock, and no, the gates of Hades or gates of hell shall not prevail against it. इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Dear friends, we are the living church of God, and we have been protected and promised by God. No gate shall stand or prevail against us. मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए हैं और रखे गए हैं, और उसके ऊपर किसी भी अधोलोक के फाटक कोई भी ऐसी चीजें हमें People are trying, many things are happening against the church of God, but let me assure you through the God's word, it is the promise. It is the Jesus said, I will build my church, and no gates of hell shall against of it. मेरे प्रियो, जब बहुत सारे लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हमें हटाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह वादा करता है कि किसी भी प्रकार के समस्या उनके ऊपर वो नहीं होंगी, प्रभावित नहीं होंगी। The Christians are like a spring. If you press it so much, but when it releases, it will be totally spread much more higher. जो ये मसीह लोग हैं वो एक स्प्रिंग के, जो छोटी सी एक स्प्रिंग होती है, जब उसको दबाते हैं छोड़ते तो बहुत ऊंचाई से उड़ती है। We are with a purpose. हम उसी उद्देश्य के लिए हैं। You are a partaker of God's kingdom. हम उसके राज्य के एक पार्टेकर हैं। You are the king. You are the good news carrier. और हम उसके सुसमाचार को लेकर चलने Let वाले me लोग। tell you, no hell shall stand against you, because you have been anointed, you have been separated, you have been called. The blessings of God, the protection of God is upon you. मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी ऐसे अधोलोक के फाटक जो हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि हम अलग किए गए, हमें संभाला गया और परमेश्वर ने हमें छुड़ा के अलग रखा है। And fourthly, waiting for the good crop. और चौथी बात कि हम एक अच्छी फसल के लिए इंतजार करें। Wow. बहुत अच्छा। We are going to produce a good harvest for God, one who saved us. और जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है, हम उसके लिए एक अच्छी फसल को उगाने वाले हैं। Jesus is going to come soon. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। Jesus is waiting on us, waiting for a good harvest. When the good harvest comes, the master will come to gather the barns. और यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि जब वो सब अच्छी फसल आ जाएगी
तो वो आएगा और वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा He is preparing his church for his coming. और वो कलीसियाओं को तैयार कर रहा है वो क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। Still somebody is waiting to have the salvation. Still somebody is waiting to have good news. आज भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जीवन में उद्धार है और ऐसा कोई सुसमाचार है। And today also there is somebody depressed and they are not having ray of hope. But good news, when somebody goes with the gospel, they will have a newness of life in them. आज भी बहुत से लोग ऐसे जो दुखी हैं तब और अपने आप में बहुत ही निराश हैं, लेकिन ये जो सुसमाचार है उनको चाहिए कि उनके जीवन में एक नयापन आए। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहन, if you are hearing me first time, अगर आप पहली बार आज सुन रहे हैं, I would like to bring a good news for you. मैं आपको लिए एक सुसमाचार लेके आना चाहता हूँ। I have a good news for you. मेरे पास आपके लिए सुसमाचार है। Jesus loves you very much. यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम He is करता है। interested upon your life. वो आपकी जिंदगी से बहुत ही प्रेम करता है। Do not give up your life. अपने जीवन को यूं ही ना Don't take your life in your hand. और आपसे अपने हाथों में अपने जीवन को पकड़ के ना रखें। God wants to reveal His things upon your life. परमेश्वर अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। And God has a greater plan than what you think of your life. परमेश्वर के पास आपके लिए बड़े-बड़े उपाय हैं And in जो this आप morning- सोचते हैं वो उससे बढ़कर भी हैं। In this morning, इस सुबह का my desire is, can you open your hearts and accept Jesus as my Lord and Savior of your life? इस सुबह काल में जो मेरी इच्छा है कि क्या आप अपने दिलों को खोल सकते हैं और परमेश्वर को स्वीकार करेंगे? Will you say, Jesus, I am a sinner, I need you? क्या आप कहेंगे कि यीशु मैं पापी हूँ और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ? Jesus, forgive my sins and make me your son and daughter. और परमेश्वर मेरे पापा को क्षमा कर, यीशु मेरे पापा को क्षमा कर। God, give me grace that I may be walk with you on a daily basis, read your scripture and follow the instruction of yours. यीशु मुझ पर दया कर ताकि मैं तेरे वचन को डेली पढूं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं। That's all you have to do for. यही बस आपको करना है। God doesn't want any big thing from you. परमेश्वर आपसे कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं God चाहता। wants your life. यीशु मसीह सिर्फ आपका जीवन चाहता है। God needs a confession from you. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंगीकार करें। When you confess from your mouth, it brings faith on you. और जब आपने मुंह से इस बात को अंगीकार करेंगे तो एक विश्वास को लेके आएगा वो। And in this morning, इस सुबह काल में let me tell you, मैं बताना चाहता you हूँ will have a very divine peace upon your life. आपके जीवन में बहुत ही दैवीय शांति मिलेगी आपको। You will have a total, completely, an awesome feeling of God in your surroundings. आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप बोलेंगे कि मेरे चारों तरफ शायद मेरा परमेश्वर मुझे निगरानी करता है। You will have a different look upon your life today onwards. और हम जब प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से अपने जीवन को देखने लगते हैं। Find out a close location where the people of God get together. और ढूंढिए कि कहाँ प्रभु के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। I believe some of the location nearby your place, there may be people of God, a church get together. और हो सकता है, मैं विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके आसपास में, आपके थोड़े से दूर पर भी प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं और आप उनमें शामिल हो जाएं। Be but continuously part of this fellowship. और आप हमेशा मतलब कि प्रतिदिन इस सहभागिता में जुड़ जाएं। And you shall grow in the Lord. और आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। Let me repeat you again. मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ There are two types of harvest. कि दो प्रकार की फसलें हैं। Natural harvest and spiritual harvest. एक प्राकृतिक फसल है और एक आत्मिक फसल है। Process are the same in the both harvest. लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो बिल्कुल एक जैसी है। The spiritual harvest, the preparing from the centuries to coming of Messiah. और जो स्पिरिचुअल आत्मिक का जो फसल है वो सदियों से उसका तैयारी हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह क्योंकि आने वाला है। The seed has been sown through the 2000 years. Jesus and disciples has been sowing the seed in His kingdom. और 2000 सालों से पहले से, मतलब कि हजारों सालों से पहले परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है ताकि लोग उसके चेले लोग भी सुना रहे हैं कि लोग प्रभु को जाने। God will protect you. परमेश्वर आप सबको संभालेगा। You are a partaker of God's kingdom. आप
परमेश्वर के राज्य के सहभागी हैं। And God is waiting to take His church. Jesus will come soon and He will take us home. और परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि आप उसके घर में आए और वो आपको अपने साथ में रखे। He is eagerly waiting for you to accept you in His family. और वो बहुत ही उत्सुकता के साथ आपका इंतजार करता है कि आप उसके परिवार में जुड़ जाएं और आप उसके संग हो जाएं। Matthew chapter 16 verse 26 says, मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 26 इस प्रकार कहता है, if a person gain whole world and loses his own soul, what benefit he gets? कि यदि एक मनुष्य इस संसार को जीत ले लेकिन अपना स्वयं का ही हृदय को खो दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। Dear friends, your life is the precious, your life is valued. Whole world and one side yourself, your life is valued more than a world. मेरे प्रियो, यदि आप संसार को एक तरफ एक संसार को रखें और एक तरफ आपके जीवन को रखें तो आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you give your life to Jesus, heavens rejoice. You make heaven delightful. Let heaven want to receive you very eagerly. और जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसको जानते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत ही मतलब कि जो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है और वो बहुत ही उत्सुकता के साथ आपका इंतजार करते हैं। Gospel always come through media or some channel. It may be today, it might be me, or it might be somebody else, or it might be some other way to reach to you. और वो सुसमाचार शायद कभी मेरे द्वारा, कभी और किसी जरिए के द्वारा आपने जरूर वो आप हमारे जीवन में आता है। But you should be reception of this good news in your life and see a change upon you. और आपको चाहिए कि आप उसको बड़ी हर्ष के साथ उसको स्वीकार करने वाले बन जाए और अपने जीवन को बदलने वाले बन जाए। May God bless you. As the scripture, Jesus said to the disciple, he said to the disciple that pray for the harvest. The harvest is plenty and the laborers are few. यहाँ पर जब वो अपने चेलों से बोलता है कि यीशु बोलता है पक्की फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। And therefore the pray to the Lord of the harvest to send the laborers for His harvest. इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। My brothers and sisters, my saved one, my dear servants of God, it's our obligation to pray to God to send the servants of God for His kingdom. और हमारा ये कर्तव्य बन जाए, हमारी एक आस बन जाए कि हमें प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु और भी अपने दास और दासियों को इकट्ठा करे और लेके आए कि वो परमेश्वर के राज्य में काम करें। Let's look to the Lord and pray and ask the Lord, thank Lord for saving our life. आइए हम सब अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें कि उस जो हमारे जीवन को बचाता है और हमें आशीष करता है। And I would request Sister Neetu Verma to pray for this session. धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी यीशु राजा, आप अद्भुत परमेश्वर Lord, हैं कि आज आपने इस प्रकार में प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया कि फसल पकी हुई और मजदूर थोड़े हैं। स्वर्गीय परमेश्वर आप हमें बोझ दें, आप हमें प्रभु जी अपना सामर्थ्य दें, अपना ताकत दें ताकि हम प्रभु जी सहभागिता में भागी हो जाएं प्रभु परमेश्वर और आपके राज्य के लिए प्रभु जी अपने जीवन को समर्पित करने वाले हो जाएं प्रभु जी और आपके लिए इस्तेमाल होने वाले हो जाएं। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हो सारे सुनने वालों के लिए जिन्होंने प्रभु जी आपके वचन को सुना है और आज ये वचन बोया गया प्रभु जी होने दे आपकी महिमा आपका अनुग्रह उनके जीवनों में प्रभु जी कि वो प्रभु जी एक उत्साह के साथ डिसीजन लेने वाले बन जाएं और आपके पीछे चलने वाले होने पाए प्रभु परमेश्वर आपके जन। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के जीवनों में बहुत की आशीष दे, सामर्थ्य दे, बल दे ताकि प्रभु जी वो आपके सम्मुख अपने जीवन को समर्पित कर दे और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को देने वाले बन जाएं। आदर मान सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. God bless you. Jesus loves you. Stay blessed and find yourself in the house of God.